students, this is Bhavesh Sharma, the biology teacher, and today we are talking about our new topic, that is the circulation in human being, or we can say that it is the transportation in human being. In this topic, we will be discussing about the various importance of transportation in your body and how the process of transportation is taking place. So let's start the topic. Transportation or circulation is a kind of transport in all form of multicellular organism. ठीक है? तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए या सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो इस सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। और एक्चुअली में ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? एक्सटर्नल की इंटरनल? यस, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। व्हाट इज इट? इट इज एन इंटरनल प्रोसेस। So by the help of this internal process, what happens? The transportation of nutrients, ठीक है? Transportation of nutrients, transportation of gases, transportation of hormones from endocrine gland, hormones, and also the transportation of excretory products. It can be nitrogenous substance. So by the help of this transportation and also by the help of this circulation, the important nutrients, which kind of nutrients? Soluble nutrients like amino acids, fatty acids, lipids, okay, such type of nutrients are getting transported into your body cells, by which you can transform your ATP in your body, and by the help of that ATP you will be able to perform different type of work activity or different form of life process in your body. Second is the gases. When we talk about the gases, it means that we are talking about the transportation of oxygen and as well as carbon dioxide. Okay? Hormones. We know that each and every hormone, what is hormone? Hormone is just a chemical substance which helps the body cell to maintain the process of homeostasis, or it helps in the control and coordination of your body also. And when we talk about the excretory products, means nitrogenous waste, such type of excretory products are toxic in nature, and such type of toxic nature products can harm your body cell, and by the help of this circulation or transportation, such type of nitrogenous waste are being discarded out from your body. तो हो ये समझ में आया आपको? आइए बहुत कुछ बात करते हैं. टॉपिक इज components of circulation. Okay na? Components of circulation. So the first component of circulation is the body fluid. Okay? Body fluid. In body fluid there is blood, second is lymph, and third is the tissue fluid. So by the help of this fluid, the transportation of oxygen, nutrients and the excretory products takes place into your body cell by the help of this fluid body. Second is the blood vessel. Blood vessel. Which type of blood vessels, my dear friends? The first is the arteries,
Second will be the vein and the connection of both arteries and vein is the capillary. So these are the three blood vessels, okay? The third component of circulatory system is the heart. What is heart? Heart is known as pumping organ. Pumping organ. By the help of this pumping organ, the transportation of this body fluid takes place into your body organ or body tissues. So let us discuss in detail about the blood fluid. Is the blood. So what is actually a blood? ब्लड की बात करें तो बेटा ये आपका एक फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? जो कि ट्रांसपोर्ट कहो या सर्कुलेट कहो, होता है किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, ब्लड वेसल है। तो आपका ये फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन, और इस पंपिंग ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं ये ब्लड वेसल, जो इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और समझ लेते हैं, इस ब्लड के अंदर अगर बात की जाए तो इस ब्लड के अंदर बेटा होता है पहली चीज तो गैसेस। ठीक है, इस ब्लड के अंदर क्या होता है? आयंस होता है, जिसकी वजह से ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं और टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस बेस मान लो। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होता है। किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स? सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा? अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड। ओके ना? दिस टाइप ऑफ सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड। सोचो, ये सारे कंटेंट्स आपके ब्लड के अंदर होते हैं और ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? बाय द हेल्प ऑफ हार्ट टू योर बॉडी ऑर्गन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर? ओके, अब कुछ और बात कर लेते हैं बेटा। ब्लड का बेटा एक पीएच होता है। पीएच बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितना होता है इसका? इसका पीएच होता है 7.35 या 7.45 पीएच इसका हो सकता है। सोचो, ये पीएच आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ब्लड ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पीएच इसके ऊपर जाना भी गलत बात, इसके नीचे जाना भी गलत बात। ऐसा होने पे, ऊपर नीचे जाने पे एक पर्सन किसी ना किसी डिसीज से सफर कर सकता है। ओके बेटा, चलिए अब और बात कर लेते हैं। ब्लड की बात करें तो बेटा इसका मास, इसके मास की बात, फ्लूइड तो है ही भाई, इसका मास एज कंपेयर्ड टू वाटर इज हाई, काफी ज्यादा होता है। अगर इसको आप एक वाटर से कंपेयर करेंगे तो वाटर के कंपैरिजन में इसका मास बहुत ही हाई होता है। होप सो आपको ये बात समझ में आई हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। सो ब्लड, जैसे बेटा आप जानते हो कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं।
एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से क्या जनरेट होता है बेटा, जनरेट होता है हार्मोन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से जनरेट होते हैं आपके हार्मोन। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर जो कि आपके टारगेट सेल तक पहुंचने का काम करता है। जिस पर्टिकुलर सेल को जिस पर्टिकुलर हार्मोन्स की जरूरत होती है उस टारगेट सेल तक ये आपके ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, पहुंच जाता है। और जब भी ये सीक्रेट होता है तो बहुत ही लेस अमाउंट में सीक्रेशन इसका होता है, ज्यादा अमाउंट में सीक्रेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर सीक्रेशन हो गया तो इफेक्ट की जगह ये डिफेक्ट भी कर सकता है, ठीक है बेटा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट हार्मोन, और इन हार्मोन्स की हेल्प से क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है। सोचो ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स है, ये भी ये काम कर रहे हैं, ओके। मैंने बताया था कि अब क्या होता है, पगली बात, ये जो आपका ब्लड है क्या करता है, ये पीएच कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, पीएच कंट्रोल भी करता है। कैसे भाई, भाई ब्लड के अंदर ना एक ऐसा बफर होता है जिसकी हेल्प से आपके बॉडी का पीएच भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये आपके बॉडी के में होने वाले हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब हीट generated while respiration. You know what is respiration? Respiration is a kind of a chemical process as we have discussed in our previous topic. It is a chemical process जिसकी हेल्प से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और जब ये प्रोसेस होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से हीट जनरेट होता है, हमारी बॉडी गर्म होती है और हीट जनरेट होता है, और लॉस ऑफ अमाउंट में हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है। इसको हम लोग कैलोरीज बर्न भी कहते हैं ना, कहते हैं खूब एक्सरसाइज की है आज हमारे बॉडी से, आज हमने इतने कैलोरीज बर्न किए। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा यूनिट होता है कैलोरी, किसका होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भाई ब्लड की हेल्प से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर मेंटेन करता है कौन, ब्लड। जो एक्सेस हीट जो बॉडी से प्रोड्यूस होती है ब्लड की हेल्प से वो आपके बॉडी स्किन तक पहुंच जाती है, और स्किन में जो आपके पोर्स होते हैं उन पोर्स के जरिए ये पर्टिकुलर गैसेस स्किन से बाहर की ओर निकल जाती है। होप्स आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छी बात है। ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चा, इन्हें हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है समझ लो। मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन साइकिल चला रहा था और साइकिल से वो गिर गया, गिरेगा तो क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा ना, ठीक है, इंजर्ड हो जाएगा। जब वो इंजर्ड हो जाएगा तो उसके किसी भी रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट में क्या होगा, वुंड हो जाएगा, मतलब कट छिल जाएगा, तो उस रिस्पेक्टिव पार्ट से ब्लड का फ्लो होता है। जब भी बॉडी से, जब भी वुंड से चोटें, जब भी वुंड का हो या चोट का हो, जब भी वहां से ब्लड का फ्लो होता है तो बहुत ही लेस अमाउंट में नहीं होता है, वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तेजी होता है, फटाफट बहना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर ये ब्लड आपका सीक्रेट हो जाएगा तो एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, लेकिन डोंट वरी ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है, ये एयर की हेल्प से, इन्वायरमेंट में जो एयर होता है ना, उस एयर की हेल्प से क्या करता है, एक लेयर जनरेट करता है। और वो लेयर क्या करती है बेटा, वो लेयर
आपके उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट के ऊपर एक लेयर बना देती है, जिसकी हेल्प से जो और ब्लड जो आने वाला था बॉडी से बाहर, वो क्या होता है, रुक जाता है। आई बात समझ में ना बेटा? चलो अच्छी बात है। किसी किसी बंदों में क्लॉटिंग फैक्टर बहुत कम होता है, ऐसे बंदे बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि कब उनके साथ क्या हो जाए। आई बात समझ में? आई थिंक होप तो ये सारे पॉइंट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे। अच्छी बात है, क्लियर हो गए हैं। तो एक फैक्टर और भी होता है ब्लड के अंदर, हम लोग कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं। ये क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है और बहुत ही लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है। क्या होता है ना, जब भी ये ट्रांसपोर्टेशन का जब भी प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस, बोले तो जर्म्स हो गए, ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं जो आपकी बॉडी को कभी ना कभी किसी भी हाल में डिफेक्ट तो कर सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, WBC होता है। WBC क्या करेगा भाई? ऐसे एजेंट्स को, ऐसे जर्म्स को इनगल्फ कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब आपके बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचने ही नहीं देता है, कि आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सोचिए, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ब्लड के अंदर परफॉर्म हो रही है। होप्सो समझ में आपको आ रहा है? यहाँ पे कॉपी करिए। होप्सो आपने कॉपी कर लिया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? कॉम्पोनेंट of blood, what are the components of blood, my dear students? The first component of blood, which is the plasma. ठीक है? प्लाज्मा की बात की जाए बेटा, तो प्लाज्मा आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बना हुआ होता है। ठीक है? सॉल्वेंट बोले तो बेटा वाटर, और सॉल्यूट बोले तो इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स कौन से? जब बताया था मैंने, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड, ग्लाइसरॉल, सब चीजें प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। चलो अच्छी बात है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और अदर टाइप ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। ठीक है? इनके अंदर गैसेस होते हैं। गैसेस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है? और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। क्या होता है इनके अंदर? प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन बोले तो फाइब्रिनोजन। ठीक है? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ठीक है? ये ऐसे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में। ठीक है बेटा? ये सॉल्वेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? बेटा ये जो आपका वाटर सब्सटेंस को हम लोग सॉल्वेंट कह रहे हैं, ये आपका 90% होता है। प्लाज्मा में बात की जाए, प्लाज्मा में अगर बात की जाए तो आपका 90% तो क्या होता है, वाटर होता है, और 10% क्या होते हैं, सॉल्यूट होता है। कितना होता है ये? मात्र 10% ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इन्हीं सब सब्सटेंस के प्रेजेंट होने की वजह से आपके ब्लड का मास एज कंपेयर टू वाटर क्या होता है, हाई हो जाता है। समझ में आ रही है? यही सब चीजें हेल्प करती हैं एक पर्टिकुलर ब्लड को इतना एक्टिव, इतना अच्छा वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो बेटा ये पहला पॉइंट था कंपोनेंट का, विच वाज द प्लाज्मा। सेकेंड इज द ब्लड सेल्स। ओके? सेकेंड इज द ब्लड सेल्स। सेल्स के आगे कभी कभी कॉर्प्यूल्स लिखा होता है। कॉर्प्यूल्स इसलिए लिखा होता है क्योंकि बेटा ब्लड सेल्स कई टाइप के होते हैं।
WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल्स, ऐसे ही कुछ सेल्स के बारे में हम लोग इनके अंदर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट इज द ब्लड प्लेटलेट। व्हाट इज इट? ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्लड सेल। प्लाज्मा के बारे में तो बात कर लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोग बात करेंगे भाई ब्लड सेल्स के बारे में। आइए बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लड सेल। ओके, द फर्स्ट ब्लड सेल इज द एरिथ्रोसाइट और RBC। Let's talk about the RBC. First of all, we will talk about its shape. शेप इसका कैसा होता है बच्चा? इसके शेप के बारे में बात की जाए तो क्या होता है? बाइकॉनकेव शेप का होता है। कैसा दिखता है ये? ऐसा। अभी ऐसा क्यों दिखता है? इसके पीछे भी रीजन है, बदल जाएगा आपको। अब RBC के बारे में हमने कह दिया कि भाई ये इतना शेप होता है। ठीक है, जो आपका ये रेड ब्लड सेल होता है, कितना ये आखिर होता होगा एक पर्सन के बॉडी में? तो इसको एज्यूम करने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं कि 1 ml ब्लड। ओके, 1 ml ब्लड, 1 ml ब्लड तो समझ ही रहा होगा कितना होता है। 1 ml ब्लड में 5.45 मिलियन ऑफ RBCs प्रेजेंट होते हैं। कितने? 1 मिलियन में 5.45 मिलियन ऑफ RBCs प्रेजेंट होते हैं। किसमें? मेल्स में। किसमें होते हैं बेटा? मेल्स में होते हैं। लेकिन यही आप कंपैरिजन अगर आप एक फीमेल में बात करेंगे तो यही कितना होता है? 4.45 मिलियन ऑफ RBC किसमें होता है? वुमेन्स में होता है। कम अमाउंट नहीं है, मिलियन। सोचो 1 ml में, और हमारे बॉडी में 6 से 7 लीटर क्या कहते हैं ब्लड होते हैं। 1 ml में जब इतना है तो अब आप कैलकुलेट करके बताइएगा। एक बॉडी में सोचो इतने मिलियंस ऑफ RBCs प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी बात? अब हम लोग क्या समझते हैं कि बेटा जब इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक चीज के अंदर है तो आखिर ये क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगा? देखो, अब हमने कहा था कि ये बाइकॉनकेव शेप का होता है। ठीक, समझो। अब हम बात करें RBC की, तो हमने कहा था कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा RBC क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बेटा? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इसके पीछे का भी एक रीजन है। देखो बेटा, जो आपका ये RBC होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नहीं होते हैं। ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इस पर्टिकुलर RBC का सेल का शेप बाइकॉनकेव होता है। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से इस सेल के अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सोचिए, न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसका शेप ऐसा है और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर इसमें न्यूक्लियस होता RBC में तो इसका शेप ऐसा दिखता,
और ज्यादा से ज्यादा ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट ना कर पाता। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात समझ में आ रही है। तो अब कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब मैंने कहा कि ब्लड भाई रेड होता है, हाँ भाई मानते हैं ब्लड होता है रेड। भाई ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है हेमियोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हेमियोग्लोबिन। इसको हम लोग HB के नाम से जानते हैं। हेमियोग्लोबिन इज जस्ट अ पिगमेंट। क्या है बेटा ये एक पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। ठीक है ना, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? कंबाइन कर जाता है। किससे कंबाइन कर जाता है? ऑक्सीजन से। कर जाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा ना बेटा, आप जानते हो क्या होगा? एक गजब की चीज ट्रांसफॉर्म होगी। क्या ट्रांसफॉर्म होगी? व्हेन दिस हेमियोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस? द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन और हेमियोग्लोबिन बोले तो पिगमेंट। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमियोग्लोबिन टेक प्लेस। आई बात समझ में? अब ये ऑक्सी हेमियोग्लोबिन क्या होता है? ये आपका अब ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होता है। कहां ट्रांसपोर्ट होगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका बॉडी सेल में। ठीक है, ये आपके बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट होता है और बिखर जाता है। कैसे बिखरेगा? मतलब ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हेमियोग्लोबिन अलग हो जाएगा, जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब किससे हो जाएगा? आपके बॉडी टिश्यूज से की हेल्प से या बॉडी ऑर्गन्स में ये ऑक्सीजन क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। होप्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है? अच्छा है, तो इसको फटाक से कॉपी करिए। आई थिंक कॉपी हो गया होगा। एक बात कर लेते हैं, एक होता है CO, बोले तो इसका नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, C फॉर कार्बन, ऑक्सीजन कितना है? एक है, तो क्या हो गया? मोनो ऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें ना तो ये एक पॉइजनस गैस है। क्या है? ये एक पॉइजनस गैस है। और ये ऐसी गैस क्या करती है? हमारे RBCs को अफेक्ट करती है। अगर ये एक RBC की कांटेक्ट में आ जाता है तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। क्या हुआ? हीमोग्लोबिन ब्लड पिगमेंट के साथ ऑक्सीजन की जगह जब आपका CO आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, HbCO, ठीक है, तो ये हमारे ब्लड को एसिडिक या पॉइजनस बना देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है? एक पर्सन डेथ की ओर पहुंच जाता है। ऐसी गैसेस कहां से आती हैं? वेरियस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आती हैं। जो कंपनी की जो फैक्ट्री से जो चिमनी से जो गैसेस निकलते हैं, जो स्मोक निकलते हैं, वो भी गैसेस की हेल्प से होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसे गैसेस, मतलब ऐसे जगहों पे अगर आप जा रहे हैं तो हमारा फेसेस क्या होने चाहिए? कवर्ड होने चाहिए, ताकि हम ऐसे गैसेस की कांटेक्ट में कम आए। हमारा मेन उद्देश्य तो यही होना चाहिए। तो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस कौन होता है? कार्बन मोनो। क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। भाई कार्बन तो हर जगह है, कार्बन तो भाई हर जगह है। ठीक है, वर्साटाइल नेचर होता है कार्बन। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बन, जब ऐसे बॉन्ड बना लेता है तो हमारे बॉडी के लिए फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं। होप तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। एक प्रोसेस परफॉर्म होता है ब्लड के जरिए, उसका नाम होता है होमियोस्टैसिस। क्या परफॉर्म होता है?
होम्योस्टैसिस नाम का एक प्रोसेस परफॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी। अब ये होम्योस्टैसिस क्या है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कमरे में, ठीक है, इस कमरे का टेम्परेचर कुछ ना कुछ है और आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है। अगर हम लोग कम टेम्परेचर से, मतलब कि अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अगर आप घर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप कमरे में एसी चला के बैठे हुए, कमरे का तापमान तो बहुत ठंडा हो गया, लेकिन वही तापमान आपके घर के बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस है। आप निकलोगे तो क्या होगा, आप इफेक्ट हो सकते हैं, ये फ्लू लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आपके कमरे का जो तापमान हो, वही तापमान जब आपके कमरे के बाहर का भी हो, तो दोनों टेम्परेचर आपस में सेम हो जा रहे हैं। जब सेम हो जाएंगे तो क्या आपकी बॉडी सेल्फ हार्म होगी? नहीं होगी ना। दैट इज द ओनली थिंग। तो होम्योस्टैसिस क्या है, आपके बॉडी सेल के टेम्परेचर को एकदम पैरेलल करता है आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। आउटर एनवायरनमेंट से आपके आउटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को आपके बॉडी सेल्स के अंदर के टेम्परेचर को आपस में पैरेलल करता है, सेम करता है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो पाए। सो माय डियर फ्रेंड, दैट वाज ऑल अबाउट द आरबीसी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डब्ल्यूबीसी।